Hello to all class 10th children, and children, we are in lesson number 13, instruments of state intervention. Right, we are in this chapter, and I told you that what do you mean by term instruments. Instruments means tools or ways, right, whereas intervention means to intervene, to come in between, to come and do something, right. Now, so here we are at state means government. So here we are going to see that what are the tools, what are the ways through which the government is intervening in the activities of any country. Specifically, we are talking about here Indian economy. So how state comes and intervenes, and what are the methods, what are the tools through which it's intervening, and why the intervention is there, why the government is intervening. The government is intervening because government wants the country to develop. Now the country can develop and grow or prosper with the economic activities going in the country, and the economic activities will work properly when the policies formulated by the government are implemented in a proper manner. So here the tools we are going to read are fiscal policy and monetary policy. Right, so the tools we are going to read here are fiscal policy and monetary policy. Right, so right now we'll be doing the fiscal policy. So basically, we are in this chapter, we are going to read about these two policies. So first we'll be reading fiscal policy. I gave you the definition of fiscal policy. I told you that what is fiscal policy. I told you that fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure programs and revenues programs. It spends or plans its revenue in such a manner that the economy could be taken to the way of success. Right, so basically this is the taxation policy, expenditure policy and public debt policy of the government. So when we talk about fiscal policy is made up of three things. It is taxation, then public debt and public expenditure. Public expenditure, I told you this thing, right? So we are reading fiscal policy right now, and fiscal policy can be divided into three constituents. So basically fiscal policy is made up of these three things, and these three things are taxation, public debt and public expenditure. So taxation brings money to the government. Taxation brings money to the government, and public debt also brings money to the government. Now this is basically the income of the government. The government is arranging for money, or government is getting money from either taxation or public debt. Taxation, you all know what is taxation. Taxation is tax. Whatever tax the government gets from different places or from different sectors is known as taxation, that we are going to read later on. So basically taxation is the source of income for the government, and same way public debt. Again we are going to read public debt in detail later on, but public debt, I'll tell you, public means सरकार का, debt means loan. सरकार जो लोन लेती है, चाहे वो बाहर के देशों से लोन ले रही है, चाहे अपने देश के लोगों से लोन ले रही है, चाहे अपने बैंक से लोन ले रही है, चाहे बाहर के बैंकों से लोन ले रही है, तो या उसके पास इस बैंक लोन से भी पैसा आ रहा है और टैक्सेशन से भी पैसा आ रहा है. तो सरकार के पास ये क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया. ये क्या हो गया, रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं. तो सरकार की इनकम कहाँ से आ रही है, एक तो टैक्सेशन से आ रही है और दूसरा पब्लिक डेट से आ रही है. ठीक है, अब सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट इसे क्या करती है, गवर्नमेंट इसको क्या करती है, स्पेंड कर देती है. जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर. क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर. अब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो किस किस के ऊपर हो सकता है, ये रोड्स के ऊपर हो सकता है, रेलवेज के ऊपर हो सकता है, स्कूल्स के ऊपर हो सकता है, कॉलेजेस के ऊपर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं.
तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ने क्या वाले हैं. सो इन द फिस्कल पॉलिसी बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज थ्री थिंग्स: टैक्सेशन, पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. आई टोल्ड यू through public taxation, and through debt, the government gets money, the government gets revenue, and government gets income, and this income is spent, which we'll call public expenditure, on the different types of the activities. These could be roadways. The spend money could be spent on construction of roadways, or construction of railway tracks, or construction of rail, on construction of dams, bridges, some types of other things also, hospitals, government schools, government hospitals, and there are many things. So this is how this is what basically the structure I have told you. Now we are going to read in detail, and I also told you that what does the fiscal policy, what are the objective of fiscal policy in a developed economy. I told you this also, that what are the objectives of fiscal policy in developed economy. So if we just move on with it, that what are the objectives. I told you we have discussed this in the last class also. So today we are going to discuss it, that the objectives of fiscal policy. So if we just discuss fiscal policy objectives, so we will be discussing the objective of fiscal policy in three ways, right? In three ways. The fiscal policy objective we are going to discuss first: objectives in developed economy, objectives in underdeveloped economy, and objectives in general. General means the objectives जो हर तरह की इकोनॉमी में काम आएंगे. तो now what I'm going to teach you today is this: what are the objective of fiscal policy. क्या objective है fiscal policy एक developed economy में, एक underdeveloped economy में, और क्या objectives है जो general है. General मतलब जो underdeveloped हो चाहे developed economy हो, सब जगह applicable होगी, right? So we'll be discussing first the objectives in developed economy. So yesterday we started with this, so I didn't tell you much about this, so today we are going to discuss it. You can open your books. So we are doing lesson number 13, and the page number is 134. So objectives, basically we have two objectives here. First, the objective 1 is going to be maintain and achieve full employment. First objective, remember we are talking about the developed economy. If you get question that what are the objectives of fiscal policy, so just pay attention whether they are talking about developed economy, or they are asking about underdeveloped economy, or they are asking about the general objectives. So read your question properly. Always go through the questions in a very cool, relaxed and chilled manner. If you want to understand the questions, you can decide that what you are supposed to write, and you know that what exactly you are supposed to write, and then you can write your answers in a very, very chill manner, right? When I say chill manner, it doesn't mean that you're going to just stop and relax and sleep. No, it's not like that. Just try to understand the question. Do not panic. That's what I want to say. So the first objective in the developed economy. Now, as we know that the developed economy are the economies which have already developed, right? ही विकसित हो चुकी हैं. The examples could be USA, the example could be UK, the example could be Japan. So these all economies are what? France. These all economies are developed. ये develop हो चुकी है. तो obviously यहाँ इन economies में अब वैसी प्रॉब्लम्स नहीं है जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होती हैं. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है. पहले हम यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट थिंग जो होगी वो ये होगी कि कोई भी क्या हो, अनएम्प्लॉयड ना हो. जब मैं अनएम्प्लॉयड कह रही हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं है, ठीक है? ह्यूमन के अलावा यहाँ पे कोई रिसोर्सेज भी अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए. रिसोर्सेज मतलब चाहे वो लैंड है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें भी क्या करनी है आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है. तो हम किसी भी चीज़ को आइडल ना छोड़ें, कोई भी चीज़ व्यर्थ ना जाए. दिस इज वी हैव टू कीप इन माइंड. सो वी हैव टू अचीव करना है हमको, फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव करना ही है, साथ में उसको मेंटेन भी करना है, राइट? एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी your economic stability. Economic
stability. Economic stability. How you are going to bring economic stability? Economic stability can be brought. It will be brought by controlling both inflation and deflation. By controlling inflation and deflation. Right? Let's understand the second one. What they are trying to say? They are trying to say that the second objective of fiscal policy in a developed economy is to bring economic stability. Now you should know the meaning of economic stability first. Right? Economic stability means stability in all in basically in market prices and production. That means stability की बात जब हम करते हैं तो what we mean basically is the stability. Stability means evenness बोल सकते हो आप, या जब ज़्यादा मूवमेंट ना हो, या वो बैलेंस, एक तरह से बैलेंस भी बोल सकते हो. ठीक है, क्या करना है आपको? मार्केट के प्राइसेस को बैलेंस रखना है. ठीक है, और प्रोडक्शन को भी बैलेंस रखना है, आउटपुट को भी बैलेंस रखना है. मतलब मार्केट के प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा जाए ना बहुत नीचे गिरे, ना ऊपर जाए ना नीचे गिरे. ठीक है, जब ऊपर नीचे हमारी जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनता है. ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मेट बनेगा. इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड साइकिल कहेंगे. क्या कहेंगे? ट्रेड साइकिल कहते हैं. ठीक है, ये होता है आपका बूम पीरियड कहते हैं. ठीक है, और इसको कहते हैं डिप्रेशन. हमें अभी ये नहीं पढ़ना है. ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ. तो बेसिकली मार्केट स्टेबिलिटी का मतलब है, आपको बस इतना समझना है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मार्केट कंडीशंस क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए. ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई. इसका मतलब क्या होता है? राइज इन प्राइस, महंगाई. राइज इन प्राइस भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि राइज इन प्राइस होगा तो लोग चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे. और डिफ्लेशन मतलब होता है फॉल इन प्राइस. फॉल इन प्राइस भी नहीं होना चाहिए. फॉल इन प्राइस होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने से कतराएगा. अगर चीज़ों की प्राइस फॉल होंगी तो कोई भी प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करने से घबराएगा, क्योंकि बोलेगा कि प्राइसेस तो इतने फॉल हो रहे हैं तो मैं प्रोडक्शन क्यों करूं. राइट? तो कीप इन माइंड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस कि किसी तरह से मार्केट कंडीशंस को नॉर्मलाइज रखना, इन्फ्लेशन ना होने देना. इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया महंगाई का होना, एंड डिफ्लेशन भी ना होने देना. डिफ्लेशन मतलब चीज़ों की प्राइस का गिरना. तो महंगाई का, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन में क्या होते हैं? जनरल प्राइस लेवल्स राइज करते हैं. चीज़ों की बेसिक नीड्स की प्राइसेस क्या होने लग जाते हैं? राइज होने लग जाते हैं. और डिफ्लेशन में क्या होते हैं? चीज़ों के प्राइसेस गिरने लग जाते हैं. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही क्या है? इकोनॉमिक के लिए बहुत खतरनाक होते हैं. इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल रखना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की मदद से, ये ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी. दीज आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स. Right? So I hope you have understood this. Now I am going to read the paragraph that is given below these. Page number is 134. The first line I am talking about. To achieve and maintain full employment, as I have told you, we are reading about the objectives of fiscal policy in the developed economy. We have to achieve and maintain full employment. Second, to achieve economic stability by controlling both inflation and deflation. Now the above mentioned objectives can be accomplished by adopting a fiscal policy of compensatory spending by the state. This refers to compensatory variations in the public expenditure by state in certain proportion according to the change in private expenditure. Now see, what they are trying to say is this कि अगर गवर्नमेंट को ये काम करना है या ये काम करना है, जो भी काम करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिस्कल पॉलिसी की मदद से. मैंने आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी क्या है. फिस्कल पॉलिसी आपकी 3 चीज़ों से बनती है. फिस्कल पॉलिसी 3 चीज़ों से बनती है. ये आपका टैक्सेशन, टैक्सेस, डेब्ट, पब्लिक डेब्ट. ठीक है, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, इन तीनों चीज़ों से क्या बनता है? आपका पब्लिक फिस्कल पॉलिसी बनती है. तो अगर गवर्नमेंट को ये दोनों चीज़ें अगर अचीव करनी है, गवर्नमेंट को अगर दोनों चीज़ें अचीव करनी है, ये और ये अचीव करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने इनकम को और अपने एंड एक्सपेंडिचर को, मतलब अपनी आमदनी को और अपने खर्चों को, ये आमदनी भी और ये खर्चे भी, इनको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा
कि प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें हो सके, राइट। अब ये कैसे होती है और क्या होती है, लेट्स सी। अगर दिया है तो आई टीच यू, और नहीं है तो फिर हायर क्लासेस में तो ये है ही। दे आर सेइंग दिस कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस: इफ द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन or unemployment has to be overcome, the total aggregate effective demand can be increased by the government by the way of increasing public expenditure. Now just try to understand. वो बोल रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, एक्सप्लेन टू यू। वो कहते हैं कि अगर देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो देश में क्या हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा होगा, ठीक है, या तो डिफ्लेशन हो रहा होगा, ठीक है। इन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया है रिसेशन एंड डिप्रेशन। अगर इस तरह की कोई, ये सब क्या है, ये उतार चढ़ाव होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अगर ये चीज़ें हो रही है तो उसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, राइट। अगर किसी कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ऐसे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पीपल आर जॉबलेस, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल इन डिमांड हो जाएगा, फॉल इन डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। देखिए इसको समझिए, जब जॉब नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड क्यों नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल होने लगेगा, प्रोडक्शन भी फॉल होने लगेगा, ठीक है। तो सरकार इसको कैसे ठीक कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा सकती है। किसको बढ़ा सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है। सी इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या है, नो जॉब, नो जॉब, जॉब नहीं है तो क्या है, नो मनी, मनी नहीं है तो नो डिमांड, लोग डिमांड नहीं करेंगे। एंड अगर डिमांड नहीं है तो क्या है, नो प्रोडक्शन या लो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन भी हो सकता है या लो प्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लो प्रोडक्शन होगा तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इंटरेस्ट नहीं लेगा कि भाई मैं प्रोड्यूस क्यों करूँ, जब लोग मांग ही नहीं रहे तो प्रोड्यूस क्यों करूँ, क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्शन कर दिया तो बिकेगा ही नहीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो अब इसको ये तो क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है कि सरकार कैसे इसको ठीक कर सकती है, सोल्यूशन वो क्या कर सकती है, यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी से कैसे यूज किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, काम कराएगी, डैम का काम करा सकती है, रोड का काम करा सकती है, ब्रिजेस का काम करा सकती है, किसी भी तरह गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर खर्च करेगी देश के ऊपर। देश के ऊपर खर्च करेगी तो रोड बनेगा, ब्रिजेस बनेगी, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर क्या होगा, लोगों के पास क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा, मनी आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और डिमांड करना शुरू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि हाउ फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स अस। फिस्कल पॉलिसी की 3 चीज़ें हैं, टैक्सेशन भी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो खर्चे करती है रोड में, ब्रिजेस में, कम्युनिकेशन में कर रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस बन रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे खर्च करने से गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को काम देती है, क्योंकि जब ब्रिजेस बनेंगे तो लोगों को काम चाहिए, इंजीनियर को भी काम मिलेगा, ठेकेदार को भी काम मिलेगा, लेबर विल ऑल्सो गेट वर्क, एंटरप्रेन्योर विल ऑल्सो गेट वर्क, मैनेजर विल ऑल्सो गेट वर्क। सो इन सबको काम मिलेगा तो क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का मतलब लोगों को पैसा मिलेगा और लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड प्रोडक्शन होगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी और सोल्यूशन ये था, जो कि हमने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या किया है, ठीक किया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रिटन इन योर बुक इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो उन्होंने इतने लंबे सेंटेंस में समझाया है वो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। तो दिस इज व्हाट
how the fiscal policy actually plays role in the solving the problems of an economy. So basically, developed economy there are two objectives. First, maintain and achieve full employment, and second, जितनी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, जो भी अनस्टेबल चीज़ें जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है, या डिफ्लेशन हो रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, soon we are going to have online classes, and in that online classes I will again restart this chapter, lesson number 13, but in the meanwhile I'll be sending in the videos, but we'll be starting again with this chapter because this chapter is quite tricky and a little bit difficult to understand. So I'll be seeing you soon in the next video. I hope this part is clear to you. See the video and read the chapter, see the video and read the chapter, and then you will understand what exactly things are going on, how they are going on. Still, in case you have some problem, you can give me a call or you can text me. Till then, take care of yourself, stay at home, stay healthy.